Hello everyone, this is Sakshi Agarwal from Malerkotla. I welcome you all on मेहनती बच्चे. I hope you all are doing well. So आज ਆਪਾਂ ਇੱਕ ऐसा टॉपिक पढ़न जा रहे हैं जो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ जैसे क्वेश्चन पंजाब पटवारी या मार्कफेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੈਂਥ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਬਣ ਜੇ ਬਟ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟਸ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੋਟਸ, ਆਈਟੀ ਨੋਟਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਫਿਗਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਲੈਂਥ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ 3rd ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਟ, ਸੋਲਿਡ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਹਾਈਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਆਇਰ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਸਰਕਲ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਐਸੀ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਿਡ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਅਰ, ਕਿਊਬ, ਸਿਲੰਡਰ, ਕੋਨ, ਇਹ ਸਭ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਟਰਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਮੈਨ ਟਰਮਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਯੂਨਿਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਏਰੀਆ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਘੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਏਰੀਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਓਕੇ,
सो हुण जिहड़ा फ्रिज है तुसीं देखोगे कि इहने कुछ ना कुछ स्पेस जमीन ते भी ऑक्यूपाई किते हो, पेपर ने नहीं किते, उन्हें दीवार ते किते हो, बट जिहड़ा फ्रिज है उन्हें कोई ना कोई स्पेस जिथे उन्होंने खड़ाया गया दीवार दे नाल तो उन्हें ऑक्यूपाई की हुई है, बट उन्हें फ्लोर ते भी की होगी। ओके, सो मतलब की है कि ये एक सॉलिड फिगर है तो इन्हें कुछ स्पेस ਨੂੰ ऑक्यूपाई किया होया है। एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ऑक्यूपाई ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਗਰ ऑक्यूपाई ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੋਲਿਊਮ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ओके, एरिया दे विच हाइट नहीं ना होंदी, सो जो एरिया नूं आपां हाइट नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी चीज़ का आपां वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ओके, हुण गल करते हैं पैरीमीटर की। पैरीमीटर का मतलब की हुंदा है कि किसी भी चीज़ की बाउंड्री, जो तुहानूं पैरीमीटर फाइंड करना है किसी का भी तो उसकी बाउंड्री देख लो। हुण सपोज करो अगर मैं इत्थे स्क्वायर की एग्जाम्पल लवां, ठीक है, हुण तुहानूं कहा गया कि ਇਹਦਾ पैरीमीटर फाइंड करो। तुहानूं पता है स्क्वायर की सारी साइड सेम होंदी है, अगर मैं साइड्स ला ला ए तो ये की ਇਹਦਾ पैरीमीटर कितना होगा 1a प्लस किया, फिर सैकेंड वाला a प्लस किया, थर्ड किया, फोर्थ किया। ओके, जो तुसीं सारे नूं प्लस करता तो अपने को ਇਹਦਾ पैरीमीटर क्या आया 4a। ओके, यही ਇਹਦਾ पैरीमीटर हो गया, यानी कि जो आप स्टार्टिंग पॉइंट तो चल के उत्थे ही पहुँच जाइए, ठीक है, जितों चले सी बाउंड्री तो उत्थे ही वापस आ गए तो वह की निकल गया पैरीमीटर। सब तो पहला एक छोटा जिहा आपां कंसैप्ट पढ़न जा रहे हैं। ओके, आम तौर पर आपां करने कि ये चीज़ 1 डायमैंशनल है, ये चीज़ 2 डायमैंशनल है, 3 डायमैंशनल है या 4 डायमैंशनल है। हुण इन्हां विच आपां छोटा जिहा डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं कोई भी पॉइंट ड्रॉ कर रही हैं, ठीक है, उन्होंने मैं की बोल सकती हूँ, सपोज मैं कोई ए पॉइंट ड्रॉ किया, इन्हों मैं की बोल सकती कि ये मेरा 0 डायमैंशनल चीज़ है। क्यों? क्योंकि 0 डायमेंशन का मतलब की है, ये कोई डायमेंशन ही नहीं है, ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है, ठीक है, मतलब कोई डायमेंशन नहीं है। वो तो बाद हुण अगर मेरे को ऐसे ही 2 पॉइंट्स आ जान, ए दे नाल बी भी आ जाए, तो ये 2 पॉइंट्स नूं मैं आपस कनैक्ट करदा तो मेरे को कोई डायमेंशन तो आई ना, एक डायमेंशन तो आई, तो जिहड़ी मेरे को फिगर बनी इनू मैं लाइन बोल सकती हूँ बेसिकली, ठीक है, क्योंकि लाइन ही फॉर्म हुई है। सो लाइन जिहड़ी है इनू आपां की बोल सकते हैं कि ये 1 डायमेंशनल फिगर है। 1 डायमेंशनल क्यों? बिकॉज ये एक डायमेंशन तो होगी, चाहे लेंथ होवे चाहे ब्रेड्थ होवे। ओके, उस तो बाद नैक्सट हुण आपां गल करते हैं 2 डायमेंशनल ते 3 डायमेंशनल फिगर्स की। अपने कोई प्लेन पेपर है, वो प्लेन पेपर के उपर तुसी कोई भी क्लोज्ड फिगर ड्रॉ की, चाहे तुसी स्क्वायर ड्रॉ किया, चाहे तुसी ट्रायंगल ड्रॉ किया। ओके, उस तो इलावा चाहे रिक्टेंगल की गल कर लो, चाहे सर्कल की गल कर लो, ठीक है, ये सारी फिगर्स जिहड़ियां ने ये की ने 2 डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है। हुण इन्हां विच एक होर कॉमन चीज़ की दिख रही है, एक तो 2 डायमेंशनल है, मतलब इन्हां नूं रिप्रजेंट करन दे लई आपां नूं 2 डायमेंशनस की जरूरत है, जिवें लेंथ, ठीक है, लंबाई कितनी है तो चौड़ाई कितनी है, ये दोनों चीज़ां आपां नूं चाहीदियां ने अगर आपां 2 डायमेंशनल फिगर नूं रिप्रजेंट करना है। तो सैकेंड गल तुसीं की देखोगे 2 डायमेंशनल फिगर दे विच ये जिहड़ी फिगर्स हैं ये कुछ एरिया नूं ऑक्यूपाई कर रही होणगियां, जिहड़े भी पेपर ते तुसीं इन्हां नूं ड्रॉ करोगे। ओके, सो हुण आपां पढ़दे हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे। जिहड़ी 3 डायमेंशनल फिगर्स हुंदियां ने वो बेसिकली की है, उन्हां विच 2 डायमेंशनस दे नाल एक होर डायमेंशन ऐड होगी, लंबाई चौड़ाई तो है, नाल डूंघाई भी ऐड होगी। ओके, सो अगर मैं गल करा कोई स्फीयर दी एग्जाम्पल बास्केटबॉल नूं लै सकदे हो तुसी, ठीक है, अगर तुसी बास्केटबॉल की गल करो तो की है एक तरीके का स्फीयर है, ठीक है, तो उन्होंने आपां की बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। सो 3 डायमेंशनल फिगर दे विच अपने कोल 2 डायमेंशनस तो हुंदियां ही ने, नाल एक होर डायमेंशन आ जाती है जिन्हों आपां डूंघाई बोलते हैं। जिहड़ी 2 डायमेंशनल फिगर है वो ऑक्यूपाई करती है एरिया, पर जिहड़ी 3 डायमेंशनल फिगर है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस। ओके, अगर तुसी फुटबॉल नूं किते रखोगे तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करूगी ना, सो वो की है एक 3 डायमेंशनल फिगर है। एवें आपां सिलेंडर दी एग्जाम्पल लै सकते हैं, ठीक है। सो अगर अपने कोल कोई सिलेंडर है या कोई क्यूब है, ठीक है, वो केड़ी फिगर्स हुंदियां ने 3 डायमेंशनल फिगर्स। आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा जो भी बेसिक आपां डिस्कस किया। एक होर गल याद रखियो, देखो मैं तुहानूं दस्सिया भी सी जदों आपां प्रीवियस ईयर वाली वीडियोज़ डिस्कस कीतियां कि जिहड़ा वॉल्यूम हुंदा है वो की हुंदा है एरिया इंटू हाइट। देखो जिहड़ी 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं उन्हां विच कल्ला एरिया हुंदा है, ठीक है, क्योंकि वो एरिया नूं ऑक्यूपाई करदियां।
बट ਜਿਹੜੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ mm that is millimeter, second one is centimeter, okay, cm, then decimeter dm and ਚ meter, okay, m। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ mm to cm ਗਏ, cm to dm ਗਏ ਜਾਂ dm to m ਗਏ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1/10 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर आप ऑपोजिट डायरैक्शन मूव करते हैं, मतलब आप मीटर टू डेसीमीटर जाने हैं, डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, तो हर स्टैप ते आप की करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 10 दे नाल। ओके हुण एक छोटी जी ये चीज़ देखो, आप बोलते हैं ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्यों बोलते हैं, इत्थे खड़े हैं मीटर ते एक स्टैप गए 10 नाल मल्टीप्लाई किया, डेसीमीटर ते आ गया, फिर डेसीमीटर तो सेंटीमीटर ते जाना है, फिर आप 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे। ओके सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आ गया ना। सिमिलरली आप बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर की है, इत्थे सेंटीमीटर ते खड़े हैं, इज इक्वल टू 1/100 मीटरस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ओके हुण एवें ही एक दो चीज़ां होर दस दियां। सब तो पहली चीज़ जिहड़ा 1 किलोमीटर हुंदा है उहदे विच किन्ने मीटर्स हुंदे हैं 1000 मीटर्स। जिथे भी वर्ड किलो लग गया ना उत्थे हमेशा 1000 लगता है, ठीक है। उस तो बाद एक नैक्सट याद रखियो 1 हैक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी किते किते थोनू काम आ सकता है। हुण देखो कुछ आप रूट दी वैल्यूज़ पढ़ते हैं, वो थोड़े याद रखनी है। सब तो पहली है √2 की कितनी वैल्यू होंगी है 1.414। ओके उस तो बाद नैक्सट है √3 की होंगी है 1.732। दैन √5 की वैल्यू होंगी है 2.236 एंड द लास्ट वन इज √6 की वैल्यू होंगी है 2.45, ठीक है। ये वैल्यूज़ याद रखियो, किते ना किते थोड़े काम आन गया। सो हुण आपां फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं एक एक करके। ओके हुण एक गल समझो, पहला सब तो पहला आपां देखते हैं कि सरकमफ्रेंस ते एरिया की है सर्कल दे विच, ठीक है। देखो हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि 2 डायमैंशनल फिगर की है, कोई भी प्लेन पेज के उपर एक क्लोज्ड फिगर नूं ड्रॉ कर दो। हुण जिहड़ी ओह क्लोज फिगर जिहड़ी कि मैं इत्थे सर्कल ड्रॉ कीती है, जिहड़ी कि ओहदी बाउंडरी है उन्होंने मैं की बोल सकती हूँ कि है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके तो जिहड़ा एरिया वो क्लोज फिगर ऑक्यूपाई कर रही है वो की है एरिया। ओके हुण आपां सर्कल दे कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। सर्कल है तो सर्कल दे विच एक दो चीज़ां तुहानूं पता होनियां चाहिदियां, ठीक है, फिर गलती नहीं लगती पेपर दे विच। सब तो पहली जिहड़ी बेसिक चीज़ है सर्कल दी, वो की हुंदी है सर्कल दा सेंटर किनूं बोलते हैं, जिहदा कि इक्वल डिस्टेंस होवे। अगर तुसी इत्थे खड़े हो तां भी इक्वल डिस्टेंस होगा ये पॉइंट दा, उरे हो इत्थों भी इक्वल डिस्टेंस हो, मतलब बाउंड्री ते कोई भी पॉइंट है वो पॉइंट दा इस सेंट्रल पॉइंट दे नाल इक्वल डिस्टेंस हो, मतलब जिहड़ा पॉइंट सेंटर च ओनू आपां की बोलांगे सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। उस तो बाद हुण एक हुंदी है कोड। देखो जिहड़ी कोड अगर मैं कह रही है ए बी की कर रही है सर्कल दे एक पार्ट नूं दूजे दे नाल जोड़ रही है, तो उस तो इलावा एक मैं गल करदी हां डायामीटर दी, ठीक है। डायामीटर भी की कर रहा है सर्कल दे एक पार्ट नूं दूजे नाल जोड़ रहा है। हुण इन्हां दोनां विच फर्क की होया, जिहड़ी कोड है, ठीक है, अगर तुसीं ध्यान नाल देखो वो सर्कल दे एक पॉइंट नूं दूजे नाल जोड़ रही है, नो डाउट, बट वो सेंटर चों नहीं पास कर रही। पर ਉਹਦੇ ऑपोजिट अगर आप डायामीटर की गल करिए जो कि इत्थे CD है, वो सेंटर दे विचों पास कर रहा है। यही फर्क हुंदा है डायामीटर ते कोड दे विच। ओके उस तो बाद जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कल दा की हुंदा है रेडियस। हुण सेंटर तो किसी भी पॉइंट दा डिस्टेंस उहनूं आपां की बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अगर आप डायामीटर नूं देखिए तो जिन्ना डिस्टेंस ओ दा C तो है सेम डिस्टेंस ओ दा D तो भी होगा। ओके बिकॉज ओ की है सेंटर है, सो आप कह सकते हैं कि जिहड़ा OD है वो भी रेडियस है तो OC भी रेडियस है। ओके
सो ये सी कुछ बेसिक्स ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, सब तो पहला गल करते हैं एरिया दी। ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 22/7। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.14। ਜਨਰਲੀ 3.14 ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸਰਕਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਆਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸਰਕਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅੱਗੇ, क्योंकि 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ इसलिए r ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ। r ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 1। ਸੋ r ਲਿਖਤਾ, ਪਾਈ ਲਿਖਤਾ ਤੇ 2 ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ r। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੀ। ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ। ਸੋ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਏ ਬੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹਾਫ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਾਫ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਫ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 2r ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2r ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਈ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2r। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਦਿਸ ਪਾਈ ਆਰ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬਣ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਏ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਫ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਹਾਫ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 1/4 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਹਾਫ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 1/4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦਿਸ ਤੇ ਦਿਸ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2r ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਾਈ ਆਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ ਹਾਫ ਪਾਈ ਆਰ प्लस 2r क्योंकि ए तो ओ तो बी भी है उरे। ठीक है, आई होप ये थोनू समझ आ गया होगा सर्कल सैमी सर्कल ते क्वाड्रेंट दा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर च आंदे रहंदे उहदे उपर क्वेश्चंस। ओके, उस तो बाद हुण नैक्सट आपां गल करदे हां रिंग दी। रिंग बेसिकली की बोल सकते हैं, देखो रिंग की होगी अपने को दो कंसैंट्रिक सर्कल्स हैं। हुण कंसैंट्रिक सर्कल्स किहड़े हो गए, कोई ऐसे सर्कल्स जिन्हां दा सेंटर सेम है, मतलब ए वाले सर्कल नूं भी ए वाला सेंटर मान के ड्रॉ किया गया है तो जिहड़ा बिगर सर्कल है उन्होंने भी यही पॉइंट सेंटर मान के ड्रॉ किया गया, उन्होंने आपां बोलते हैं कंसैंट्रिक सर्कल्स। ओके, हुण देखो सपोज रिंग दे केस दे विच की है, जिहड़ा दो सर्कल दे विच एरिया है तुहानूं ए फाइंड करन दे लई बोलिया जावे। ठीक है, जिहड़ा स्मॉल सर्कल है सपोज इहदा रेडियस हैगा स्मॉल आर तो जिहड़ा बिग सर्कल है इहदा रेडियस है कैपिटल आर। तो एरिया जिहड़ा आह डार्क वाला पार्ट है इहदा तुसीं किवें फाइंड करोगे, बेसिकली बड़े वाले सर्कल दे एरिया दे विचों छोटे वाले सर्कल दा एरिया माइनस करोगे ना, इहदे विच अपने कोल एरिया की आऊगा, एरिया इज इक्वल टू पाई
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके तो इत्थे अगर आप सरकमफ्रेंस की गल करिए, जिहड़ा बिगर सर्कल है इहदा सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई कैपिटल आर, तो जिहड़ा स्मॉल सर्कल है इहदा सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई स्मॉल आर। ओके आई होप थोनों ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप काफ़ी डिटेल दे विच डिस्कस कर रहे हैं पर इहदा थोनों फायदा होगा। और तो बाद हुण नैक्सट आपां की कीता, आपां डिफरेंट सर्कल्स लिते तो उन्होंने एवें एक दे उपर एक रखा, जिमें सपोज करो कि आप कॉइनस नूं एक दे उपर एक रखता, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो सर्कल नूं जदों आप एक दे उपर एक रखांगे तो अपने को एक फिगर प्रोड्यूस हो जूगी। वो फिगर किहड़ी अपनी सिलेंडर। हुण देखो बेसिकली जिहड़ा सिलेंडर है वो की है 3D फिगर। 3D फिगर क्यों है? बिकॉज इस सर्कल नालों होर डायमेंशन भी ऐड होई होगी, तो वो डायमेंशन किहड़ी है? हाइट है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हुंदा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके हुण जिहड़ा सिलेंडर है वो दो तरीके दा हो सकदा है, ओपन सिलेंडर भी हो सकदा है ते क्लोज्ड सिलेंडर भी हो सकता है। ओपन सिलेंडर मतलब ये सिर्फ आह इन्ना क पार्ट है, ठीक है, ये उपर कोई कैप नहीं है। तुसीं कोई कैन दी एग्जाम्पल लै लो, सपोज करो कोई कैन है, उहदा अगर आपां टॉप का जिहड़ा सर्कुलर पार्ट है तो बॉटम का सर्कुलर पार्ट है वो आपां वो तो हटाता, ठीक है। तो जिहड़ा अपने कोल राउंड वाला पार्ट बनया उन्होंने आपां कह सकते हैं कि ओपन सिलेंडर है। तो अगर आप उन्होंने फिट कर दिंदे आ उपर वाले पार्ट नूं भी ते बॉटम वाले पार्ट नूं भी, तो उन्होंने आपां बोलांगे क्लोज्ड सिलेंडर है। हुण जदों आपां ओपन सिलेंडर की गल करिए, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उस केस दे विच ओहदी वैल्यू कितनी होगी? आ वाले 2 नूं लै जाओ अगे, तो कितना आया 2 पाई आर एच, ठीक है। आर दी घट गई ना, तो एवें तुसीं याद रख सकते हो। हुण जदों क्लोज्ड है मतलब अपने कोल आह कोई सिलेंडर सी जो कि फिलहाल ओपन है। हुण क्लोज करन दे लई की करता आपां ने इहदे उपर एक सर्कुलर जिहड़ा कैप है वो चढ़ाता, ठीक है, एक ऊपर चढ़ाता एक नीचे चढ़ाता। हुण इहदे एरिया दे उपर की फर्क पऊगा? क्लोज दे केस दे विच एरिया दे विच बेसिकली आ की हुंदा इहदा एरिया सर्कल दा पाई आर स्क्वायर, तो इहदा भी कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो इस केस आपां की कीता 2 पाई आर स्क्वायर नूं ऐड किया ना, तो इहदे विच की होगा पाई आर स्क्वायर एच तो आऊगा ही इस बॉडी का जिहड़ा एरिया प्लस इस 2 पाई आर स्क्वायर भी ऐड हो जाऊगा। सो अल्टीमेटली जिहड़ा टोटल सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का वो कितना हुंदा है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। ये वैल्यू याद रखियो। और तो बाद हुण नैक्सट फिगर की गल करते हैं, वो है कोन। ओके हुण देखो की किता अपने कोल सी एक सिलेंडर, उस सिलेंडर दे विच एक आपां कोन नूं फॉर्म करता। कोन नूं फॉर्म करता जदों, तो तुसीं देखोगे कि जिहड़ा सिलेंडर है वो 3 इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड हो गया। ओके सो आपां की बोल सकते हैं, ये बेसिकली याद करन दा भी एक तरीका है। जिहड़ा वॉल्यूम ऑफ कोन हुंदा है, ठीक है, इत्थे आपां कोन कंसीडर कर रहे हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा? सिलेंडर का की पढ़िया सी पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आपां ने कोन दे विच उहनूं 3 पार्ट्स डिवाइड करता ना, उहदी जिहड़ी स्पेस है सिलेंडर की वो 3 पार्ट्स डिवाइड होगी। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आपां 3 पार्ट्स उहनूं डिवाइड करता तो उहदे विचों एक पार्ट अपना कोन है, ठीक है। उस तो बाद हुण अगर आपां कोन एक ड्रॉ कर लैंदे आ ताकि अच्छे तरीके नाल समझ आ जाए। देखो हुण कोन दे विच ये तो होया मेरा रेडियस ते होई हाइट, ठीक है। हुण जिहड़ा कोन दा स्लांटिंग साइड है इनू आपां की बोलते हैं स्लांट हाइट। ओके इनू रिप्रजेंट करते हैं एल दे नाल, ते इहदी बेसिकली वैल्यू कितनी हुंदी है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल दी वैल्यू जिहड़ी हुंदी है वो की हुंदी है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इहदा जिहड़ा स्लांटिंग पार्ट आ आपां एल दैट इज स्लांटिंग हाइट दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। अगर स्ट्रेट है तो हाइट बोलांगे, क्योंकि थोड़ी जी टेढ़ी है, ठीक है, स्लोपिंग है, इसलिए आप इहनूं स्लांट हाइट बोलते हैं। ओके सो कोन दे केस दे विच जिहड़ा एरिया ऑफ कोन है वो कितना हुंदा है, उहदी वैल्यू एज इट इज़ तुहानूं याद ही रखनी पऊगी, वो हुंदा है पाई आर एल, ठीक है, क्योंकि एरिया इहदे अंडर हो गया ना, तो इहदे विच एल दा रोल होया पाई आर ते एल नाल मल्टीप्लाई करांगे उरे एच की बजाय, ठीक है। उस तो बाद अगर आपां टोटल सरफेस एरिया की गल करिए कोन दे, तो वो की हो गया जो आप सिर्फ एरिया की गल की तो उस टाइम ते बेस है जिहड़ा वो है नहीं, ओपन बेस है, ठीक है, क्लोज नहीं है।
पर अगर मैं ये बेस नू क्लोज कर दा, इत्थे भी एक सर्कुलर शीट लगा दा, ठीक है, तो की होगा पाई आर एल जिहड़ा एरिया कोन दा उहदे नाल अपना जिहड़ा सर्कल दा एरिया नीचे वाले बेस दा वो भी ऐड हो जू। सो अल्टीमेटली जिहड़ा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बन गया पाई आर एल प्लस आर। सो ये कुछ छोटे जे कंसैप्ट्स हैं, इन्ने डिटेल च तां समझा रही हैं, पेपर च भी तुहाडे काम आउणगे, ठीक है, इन्हां नूं याद रखो। हुण शायद कईयां नूं एक डाउट आ रहा हो कि पेपर च पता किवें लगू कि एरिया फाइंड करना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, या जिन्हों आप लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं वो फाइंड करना है, या क्लोज्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो पेपर च आम तौर पर एरिया बोलिया गया होंदा है, तो उस केस दे विच आपां कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करांगे। क्लोज्ड सरफेस एरिया आप उदों ही फाइंड करांगे अगर आपां नूं दिता गया होवे कि अपने कोल क्लोज्ड सिलेंडर है या क्लोज्ड कोन है, ठीक है, उत्थे लिखा होगा कि क्लोज्ड सरफेस एरिया दा फाइंड करो, ठीक है। अगर कला एरिया लिखा होया तो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो हुण उत्थे तां आपां एक कोन की गल कीती, हुण अगर मैं ऐसियां ही 4 कोन्स लै लां, ठीक है, तो उन्हां नूं ज्वाइन कर दां, जिवें इत्थे मेरे कोल 4 कोन्स हैं, तो इत्थों एक आपां न्यू कंसैप्ट सीखण जा रहे हैं। ओके, सो दीज आर 4 कोन्स। ओके, तो इन्हां नूं अगर मैं मिला दा तो तुसी ध्यान नाल जे देखोगे ये शेप की बन रही है स्फीयर। ओके, सो जिहड़ा स्फीयर हुंदा है वो एक्चुअल दे विच तुसी ऐ कह सकदे हो कि 4 कोन्स नाल मिल के बनया हुंदा है। ओके, सो अगर आपां वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखिए, ठीक है, तो कितना आना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। हुण देखो जो कोन दा आपां पढ़िया उहदे विच बोलिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बट स्फीयर दे केस दे विच जिहड़ा रेडियस ते हाइट है स्फीयर दी वो दोनों आपस च इक्वल हुंदे हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली उरे की आ गया आर दा क्यूब, क्योंकि 4 इत्थे कोन्स की गल कर रहे हैं तो अगे 4 नाल मल्टीप्लाई कर दो ये चीज़ नूं, ठीक है, तो आर ते एच की वैल्यू इक्वल है तो कितना हो गया, अगर आप इनू मल्टीप्लाई करिए 1/3 पाई आर क्यूब, सो अल्टीमेटली कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो एवें तुसी इंटर रिलेट कर सकते हो। हुण आपां गल करते हैं स्फीयर दे एरिया दी, ठीक है। हुण एरिया ऑफ स्फीयर किवें कड्डोगे, जिहड़ा आ वाला 3 है इनू इधर लै जाओ, सो 3 × 4/3 पाई आर स्क्वायर करता ना, सो अपने कोल की बनया 4 पाई आर स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्फीयर दा। एरिया ऑफ स्फीयर कितना होंदा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ एक याद करने का तरीका है ताकि तुसी भुल्लो ना। आई होप थोनू वॉल्यूम भी याद हो गया होगा स्फीयर का कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो एरिया भी याद हो गया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर तुसी भुल जाओ कि आर दा क्यूब है स्क्वायर है तो भी याद रख सकते हो कि वॉल्यूम दे विच क्यूब हुंदा है, ठीक है, किसी भी यूनिट का, तो जिहड़ा एरिया हुंदा उहदे विच स्क्वायर हुंदा है। ओके, आई होप थोनू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ते एरिया ऑफ स्फीयर याद हो गया होगा। हुण नैक्सट फिगर नूं डिस्कस करते हैं, वो हैगी है हैमीस्फीयर। हैमी मतलब की हुंदा है हाफ, यानी कि स्फीयर दा हाफ करता। ओके, सो दिस इज हैमीस्फीयर बेसिकली। ओके, सो हैमीस्फीयर दे विच जिहड़ा वॉल्यूम ऑफ हैमीस्फीयर आएगा वो कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपां की डिस्कस किया 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ हैमीस्फीयर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। या फिर तुसी ये भी याद रख सकते हो कि जिहड़ा हैमीस्फीयर है वो बेसिकली 2 कोन्स दे नाल मिलके बनया होया है। ओके, जिवें स्फीयर 4 कोन्स नाल मिलके बनया होया सी, हैमीस्फीयर 2 कोन्स नाल मिलके बनया होया है, ठीक है। सो इहदा कितना आ गया वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। उस तो बाद हुण देखो जिहड़ा स्फीयर है उहदे केस दे विच अपने कोल एक तां टोटल सरफेस एरिया हुंदा, एक कर्व सरफेस एरिया हुंदा है। सो अगर आपां कर्व सरफेस एरिया की गल करिए हैमीस्फीयर दे तो वो कितना होगा, ए वाले 3 नूं इधर लै जाओ तो कितना होया 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का मतलब की है कि आपां सिर्फ वो एवें बॉडी लीती है, जिहड़ा कर्व्ड पार्ट है नीचे जिहड़ा आह बेस है वो ओपन है, ठीक है। सो वो हो गया कर्व सरफेस एरिया अगर ये ओपन है। हुण अगर ये क्लोज है वो केस आ जाए तो उत्थे आपां टोटल सरफेस एरिया नूं कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो 2 पाई आर स्क्वायर जो कि कर्व सरफेस एरिया हैमीस्फीयर दा, उहदे विच आपां पाई आर स्क्वायर नूं होर ऐड करता तो अपने कोल की बनया 3 पाई आर स्क्वायर। सो हैमीस्फीयर दे केस दे विच अपने कोल जिहड़ा टोटल सरफेस एरिया हुंदा वो कितना हुंदा 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया कोई पूछे 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो एक गल याद रखियो जिहड़ा स्फीयर है उहदा एरिया जिहड़ा है वो टोटल सरफेस एरिया ही हुंदा है।
ਓਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4πr²। ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਏਰੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕਿਊਬੋਇਡ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੂਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਊਬੋਇਡ। ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਵਾਲਸ। ਓਕੇ ਸੋ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਲੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬੋਇਡ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੱਕ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈਂਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਈਟ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਊਬੋਇਡ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ। ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, L × B × H, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕਿਊਬੋਇਡ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ × ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲੋਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਈਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਰੀਆ × ਹਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 2 ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬੋਇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਲਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੀਲਿੰਗ ਤੇ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਓਕੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੀਲਿੰਗ ਤੇ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, 4 ਵਾਲਸ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਾਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਡਥ × ਹਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ 4 ਵਾਲਸ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਲੇਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ, ਓਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਵਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 4 ਵਾਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਬਾਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰੀਏ 2LB × H ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਥ × ਬ੍ਰੈਡਥ। ਸੋ ਲੈਂਥ × ਬ੍ਰੈਡਥ ਟੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਲੱਸ ਲੈਂਥ × ਬ੍ਰੈਡਥ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 2LH + BH + LB, ਓਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀਏ 2LB + BH + HL। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 × ਲੈਂਥ × ਬ੍ਰੈਡਥ + ਬ੍ਰੈਡਥ × ਹਾਈਟ + ਹਾਈਟ × ਲੈਂਥ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਨਲ ਆਫ ਕਿਊਬੋਇਡ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ L² + B² + H², √L² + B² + H²। ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਊਬ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਊਬੋਇਡ ਤੇ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ L ਤੇ B ਤੇ H ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਊਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿਊਬੋਇਡ ਤੇ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕਿਊਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ, L × B × H = A³ ਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ
कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया आऊगा, और कितना आऊगा 2l प्लस बी कितना सी ना, सो 2a हो गया इंटू ए, कितनी वैल्यू आई 4a स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जिहड़ा हुंदा है क्यूब का कितना हुंदा है 4a स्क्वायर। तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया की गल कर दिए, मतलब आपने फ्लोर दा ते सीलिंग दोनों का एरिया भी ऐड करता ना, जो कि a स्क्वायर के इक्वल है। सो 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर तक कितना आ गया 6a स्क्वायर। ओके, ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, याद रखने हैं। तो अगर अपने को डायगनल दिता होवे, डायगनल ऑफ क्यूब ओदी वैल्यू कितनी आऊगी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कि इक्वल हो गया है 3a स्क्वायर दे। सो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आई, a नू बाहर लै जाएंगे a√3। ओके, ये कुछ बेसिक्स हैं, याद रखियो। सो हुण आपां 3 ऐसे फिगर्स नू डिस्कस करन जा रहे हैं जिन्हां उपर पेपर च क्वेश्चन आ भी सकदा है ते नहीं भी, ठीक है। तो अगर तुहानूं फॉर्मूला याद है तो पेपर च क्वेश्चन आ गया तो बहुत खुशी मिलूगी तुहानूं। सो उसी फर्स्ट अपने कोल फिगर है फ्रस्टम। कदे बाल्टी देखी है पानी दी भरी हुई, या खाली बाल्टी लगा लो, ठीक है। अगर आप बाल्टी की शेप देखिए कुछ इस तरीके की होंगी है ना, सो ये बेसिकली की है एक फ्रस्टम। ओके, सो फ्रस्टम के केस दे विच बेसिकली तुसी 3 फॉर्मूलाज नू याद रखना है, ठीक है। हुण देखो फ्रस्टम दे विच बेसिकली की हुंदा अपने कोल ए वाला कैपिटल आर है तो ए वाला स्मॉल आर, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिए जिहड़ा इहदा सरकमफ्रेंस है वो छोटा है ना इहदे नालों, सो इहदे विच 2 रेडियस हुंदे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इत्थे अगर मैं इन्हां दोनों दे विच एक लै ला हाइट, ठीक है। तो जिहड़ा कर्वड पोर्शन है वो मैं तुहानूं दस्सिया सी कोन दे केस दे विच की हुंदा मेरे कोल स्लांट हाइट। ओके, सो हुण फ्रस्टम दे केस दे विच वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया ते टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू नूं तुहानूं याद रखना है। सब तो पहला वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम कितना हुंदा है 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ओके, उस तो बाद सैकेंड अगर आप गल करिए फ्रस्टम का जोड़ा कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी होंगी है, वो होंगी है पाई r प्लस r इंटू एल। देखो अगर तुसी ध्यान नाल एक चीज़ नोट की होवे तो जोड़ा फ्रस्टम है बेसिकली की है, अगर मेरे को यह कोन है, ठीक है, एक कोन नू अगर मैं इत्थों विचों एवें कट कर दिनी है तो मेरे को अल्टीमेटली एक फ्रस्टम बन जूगी ना। अगर मैं कोन नू कट करता तो वही चीज़ है, कोन दे विच एक रेडियस हुंदा है बट फ्रस्टम दे विच 2 रेडियस हुंदे हैं। सो कोन दा आपां कर्व सरफेस एरिया की पढ़िया सी पाई आर एल, ठीक है, क्योंकि ये 2 रेडियस हैं, सो यदा क्या हो गया पाई आर प्लस आर इंटू एल। ओके, सो हुण फ्रस्टम का जो टोटल सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू कितनी आऊगी कर्वड पार्ट की, ते नाल आपां एक आ उपर वाला लवांगे ते नाल जिहड़ा सर्कल नीचे वाला है ओदा एरिया ऐड करांगे। ओके, सो पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस उपर वाले का कितना होगा, सर्कल है ना पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे वाले का एरिया कितना होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो अल्टीमेटली यदि वैल्यू कितनी आ गई पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, आई नो ये थोड़ा जिहा डिफिकल्ट है बट अगर तुम इनू समझोगे ना तो याद हो जाऊगा। उस तो बाद नैक्सट हुण आपां शेप की गल करते हैं, वो है हैग्जागन। हैग्जागन नू अगर आप ध्यान नाल देखिए, हैग्जा का मतलब क्या होंदा है 6, ठीक है, मतलब ये 6 साइड्स हैं। सो हैग्जागन की कुछ शेप इस तरीके की होंदी है। बेसिकली उरे आप रैगूलर हैग्जागन की गल कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप हैग्जागन नू ध्यान नाल देखिए, ये मिडल पॉइंट है, सारे एंड्स नू जोड़ दी अगर आप तो तुसी देखोगे हैग्जागन दे विच टोटल 6 जड़ियाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो बन जांदियां। इहदे विच हर साइड जिहड़ी हैगी है उहदी लेंथ है ए। ओके, ते विच जिहड़ी अपने कोल आह साइड्स हैं इन्हां दी भी लेंथ सब दी ए हुंदी है। सो अल्टीमेटली जिहड़ा हैग्जागन है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स नाल मिलके बनिया हुंदा है, ठीक है। हैग्जागन दे विच जिहड़ा एरिया है वो कितना हुंदा है, अगर आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की गल करिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हुंदा है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, अगर साइड है ए, ठीक है। सो इत्थे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, सो इहदा एरिया कितना होगा 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ओके, एवें तुसी याद रखियो, इंपॉर्टेंट है।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर आप हैग्जागन दे पैरीमीटर की गल करिए तो पैरीमीटर कितना होगा, पैरीमीटर का मतलब बेसिकली की होंगे आप पूरी बाउंड्री नू देख रहे हैं, ठीक है। सो इत्थों अगर स्टार्ट होने हैं, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, सो पैरीमीटर कितना आ गया 6A, मतलब A नू आप 6 टाइम्स ऐड करता, ओके। सो पैरीमीटर की वैल्यू 6A है तो एरिया की वैल्यू कितनी है 6 × √3/4 A²। ए जिहड़ा है वो की है साइड, ओके। उस तो बाद थर्ड फिगर है अपने कोल ऑक्टागन। सो ऑक्टागन दे विच कितनी साइड्स होंदी है 8, ठीक है। ऑक्टागन की शेप कुछ इस तरीके की होंदी है, सो 8 साइड्स है ना, ओके। ऑक्टागन का तुसी याद रखियो कि जिहड़ा एरिया है इहदी वैल्यू तुहानूं एज इट इज़ याद रखनी पऊगी। ऑक्टागन दे विच एरिया की वैल्यू हुंदी है अपने कोल 2A² 1 + √2, वेयर ए की है हर साइड ऑक्टागन दी, ओके। सो एरिया की वैल्यू यह है तो पैरीमीटर कितना होगा 8A, क्योंकि 8 साइड्स है ना, ठीक है। सो ये छोटे जे फॉर्मूलाज याद रखियो। वो तो बाद हुण आपां नैक्सट गल करते हैं। वो तो पहला एक होर चीज़ समझो, अगर तुहानूं दिता होवे कि एक कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो मैल्ट होके किसी दूसरी चीज़ दे विच कन्वर्ट हो रही है, तो उस च याद रखियो हमेशा आपां किहनूं इक्वेट करांगे वॉल्यूम नूं। ते अगर दिता होवे कि कोई वायर है, ठीक है, वो वायर नूं आपां ने कोई स्क्वायर शेप दे विच पहला मोड़ता, फिर उही वायर नूं आपां कोई सर्कुलर शेप दे विच मोड़ता, तो उस केस दे विच आपां जिहड़ा पैरीमीटर है स्क्वायर दा ते सर्कल दा, इन्हां दोनों नूं इक्वेट करांगे, क्योंकि वायर दी लेंथ तो सेम है जिन्हें आउटर बाउंड्री बनानी है स्क्वायर या सर्कल दी, ठीक है। सो अगर दिता होवे कि कोई वायर कन्वर्ट होगी एक शेप तो दूसरी शेप दे विच, उस केस च आपां पैरीमीटर नूं इक्वेट करते हैं। पर अगर आपां नूं दिता होवे कि मैल्ट होगी एक शेप दूसरी दे विच, उस केस च आपां वॉल्यूम नूं इक्वल करते हैं। ये चीज़ याद रखियो, ओके। सो आपां 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे ऑलमोस्ट सारिया चीज़ां डिस्कस कर लिया, सारे फॉर्मूलाज देख ले। सब तो पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनू एज इट इज़ याद रखना है, वो हैगा इन रेडियस ते सरकम रेडियस। जदों अपने कोल देखो इन रेडियस मतलब की है, सपोज ये की होंगे अपने कोई ट्रैंगल है, इस केस आप एक इक्वलेटेड ट्रैंगल की गल कर रहे हैं, ठीक है। सो वो ट्रैंगल दे अगर अंदर सर्कल है तो की होया इन होया ना। सो अगर अंदर सर्कल है तो आप उस केस च इन रेडियस फाइंड करते हैं। अगर यही सिमिलर ट्रैंगल दे अपने कोल बाहर रेडियस है, मतलब जोड़ा सर्कल है उन्हें ट्रैंगल की बाउंड्री नूं घेरिया होया है, ठीक है, तो उस केस च अपने कोल जिहड़ा रेडियस हुंदा सर्कल दा उहनूं आपां की बोलते हैं सरकम रेडियस। सो अगर अपने कोल इक्वलेटेड ट्रैंगल है, ओ वाला केस है, उस इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा ए की है साइड ऑफ ट्रायंगल, ओके, क्योंकि इक्वलेटेड ट्रायंगल है तो सारी साइड सेम होंगे ट्रायंगल दियाँ। सो उस केस दे विच इन रेडियस क्या होगा A/2√3, यानी कि साइड अपॉन 2√3, ओके। तो जिहड़ा सरकम रेडियस है उसका फॉर्मूला क्या होंदा है साइड अपॉन √3। याद रखियो उरे 2 आंदा है, उरे सिर्फ √3, ठीक है। सो नैक्सट हम आप सब तो पहले ट्रायंगल्स नू डिस्कस करते हैं। बेसिकली अपने को 4 तरीके की ट्रायंगल होंदी है। सब तो पहली है स्केलर ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिदा A B ते C, अगर ABC साइड्स हैं ट्रायंगल दियाँ कोई भी आपस इक्वल नहीं है, उन्होंने आप बोलांगे स्केलर ट्रायंगल, ओके। सैकेंड वन होंदी अपने को आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल दे विच की होंदा है 2 साइड्स इक्वल होंदियां ने, ठीक है। जिवें अपने को अगर ABC साइड है, सपोज इत्थे बेसिकली आप A ते A सेम लै ली, ठीक है, A = B, यानी कि 2 साइड सेम है तो एक साइड डिफरेंट है। उस तो बाद थर्ड अपने को केड़ी ट्रायंगल है जिहदियां सारी साइड सेम होन, यानी कि उरे 3 जिहड़ी साइड्स उन्हां दी वैल्यू तिन्नां दी की आऊगी A सेम आऊगी, ठीक है। उस तो इलावा एक फोर्थ अपने को ट्रायंगल है जिन्होंने आप राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल दे विच बेसिकली एक एंगल किन्ने दा हुंदा है 90 डिग्री का, ओके। 3 एंगल्स होंदे हैं ना, उन्हां विचों एक दी वैल्यू 90 डिग्री होगी, ठीक है। सो हुण एक एक करके डिस्कस करते हैं इन्हां दे एरियाज बारे। अगर अपने को स्केलन ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल का फॉर्मूला थोड़े को दिता होया है एरिया = √S। बेसिकली किनू बोलते हैं, S का मतलब होंदा है सैमी पैरीमीटर, ओके। सो √S, S- A, S- B, S- C, ABC के बेसिकली अपने को साइड्स हैं ट्रायंगल दियाँ, ओके। सो
नैक्सट याद रखियो कई बार जो स्केलन ट्रायंगल है वो केस च अपने को सैमी पैरीमीटर भी बोल देंगे हैं कि सैमी पैरीमीटर की वैल्यू कड्डो। सो सैमी पैरीमीटर की वैल्यू की करांगे जी अपने को साइड्स की वैल्यू दी हुई ट्रायंगल की प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 दे नाल। ओके उस तो बाद नैक्सट है आइसोलेस ट्रायंगल। हुण आइसोलेस ट्रायंगल दे विच 2 साइड्स इक्वल है। ओके तो इस केस दे विच जिहड़ा अपने को एरिया हुंदा है वो बेसिकली की हुंदा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके सो बेस मीनस आ वाला तो हाइट मीनस जिहड़ा परपेंडिकुलर आपां ड्रॉ किया है। सो ये जिहड़ी हाइट की वैल्यू हुंदी है वो तुसीं याद रखनी है √4a² माइनस b² डिवाइड बाय 2। ए बेसिकली किहड़ी साइड है जिहड़ी इक्वल है, बी किहड़ी साइड है जिहड़ा कि बेस है तो जिहड़ी अनइक्वल साइड है। ओके नैक्सट थर्ड आप गल करते हैं इक्वलेटर ट्रायंगल की। इक्वलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी हैं तो फॉर्मूला की होंगे √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है साइड की वैल्यू इतने ए लिखी है तो a² लिखा है। उस तो बाद राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दे विच बेसिकली एरिया की वैल्यू कितनी होंगी है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके हाइट किहड़ी हुंदी है जिहड़ी परपेंडिकुलर होवे ते जिहदे उपर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होवे उहनूं आपां जनरली बेस बोलते हैं। ओके सो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज इन्हां याद रखियो। हुण नैक्सट आपां होर 2D फिगर्स याद करते हैं। बेसिकली जिहड़ा अज का लैक्चर है थोड़ा ईजी है, तुहानूं जनरली सारे फॉर्मूलाज आंदे होणगे बट एक बार रिवाइज जरूर कर लियो बिकॉज कई बार छोटे छोटे मिसटेक्स भी हो जांदियां पेपर दे विच। सब तो पहला आपां गल करदे हैं रिक्टेंगल दी। ओके रिक्टेंगल का एरिया कितना हुंदा है लेंथ इंटू ब्रैथ। ठीक है तो पैरीमीटर की होंगे बेसिकली पैरीमीटर दे विच आपां पूरी बाउंड्री कैलकुलेट करते हैं ना कि उहदी कितनी वैल्यू है। सो ये 2 L होंगे रिक्टेंगल दे बिकॉज ऑपोजिट साइड सेम होंगी है 2 L 2 B आ गए। ठीक है सो यदा पैरीमीटर कितना होया 2L + B। ओके दैन सो रिक्टेंगल के केस दे विच अगर मैं डायगनल की वैल्यू फाइंड करनी होवे जिमें कि मैं BD की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है हर एंगल डायगनल दे विच कितना हुंदा 90 डिग्री का। सो उरे डायगनल की वैल्यू कितनी आऊगी ये हुंदा L² + B² √L² + B²। ठीक है यदी वैल्यू तुसी एज इट इज़ याद रखियो। बेसिकली अगर आप एंगल BCD की गल कर रहे हैं ये हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाता उत्थों ही वैल्यू आई है। ओके दैन आप गल करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर दे विच की हुंदा एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है अगर ए साइड है स्क्वायर की तो साइड नू साइड नाल मल्टीप्लाई कर दो एरिया आ जाऊगा। ओके तो ये एक होर फॉर्मूला होंदा एरिया का अगर तुहाडे कोल डायगनल की वैल्यू दी हुई है साइड नहीं दी हुई स्क्वायर के केस दे विच तो उहदा एरिया कितना होगा एरिया इज इक्वल टू डायगनल दा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके दैन हुण थर्ड आप गल करते हैं कि डायगनल ऑफ स्क्वायर किहदे इक्वल हुंदा है। जिहड़ा डायगनल ऑफ स्क्वायर है वो बेसिकली साइड का √2 कर दो। ठीक है या फिर इनू एवं याद रख लो कि साइड में √2 के नाल मल्टीप्लाई करना है तो इतों अपने को डायगनल की वैल्यू आ जाऊगी। ओके उस तो बाद नैक्सट इज पैरीमीटर। पैरीमीटर के केस दे विच आपां की करांगे सारी साइड्स नू ऐड कर देंगे। ठीक है सो इत्थे सारी साइड का जिहड़ा वैल्यू है वो कितनी है A। सो पैरीमीटर कितना आया स्क्वायर के केस दे विच 4A। ओके दैन थर्ड फिगर इज रोम्बस। रोम्बस दे विच जिहड़ा एरिया हुंदा है वो किहदे इक्वल हुंदा है। हुण देखो जिहड़ा स्क्वायर ते रोम्बस है वो वैसे बिल्कुल सेम हुंदा है क्योंकि स्क्वायर ते रोम्बस दोनों दे विच जिहड़ी हरेक साइड है उहदी लेंथ हुंदी है इक्वल बट डिफरेंस कित्थे आ जांदा है स्क्वायर दे विच जिहड़ा हरेक एंगल है वो 90 डिग्री का हुंदा है। ओके बट रोम्बस दे विच हरेक एंगल 90 डिग्री का नहीं हुंदा बस इन्ना क डिफरेंस है। सो अगर एरिया ऑफ रोम्बस की गल करिए वो कितना होगा हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगनल 1 इंटू लेंथ ऑफ डायगनल 2। ओके बेसिकली अगर आप स्क्वायर का एरिया ध्यान नाल देखिए तो स्क्वायर का एरिया भी यही है ना हाफ इंटू D² किमें आया D1 इंटू D2 नू मल्टीप्लाई करके क्योंकि स्क्वायर दे विच डायगनल दोनों की वैल्यू सेम होंगी है D1 इज इक्वल टू D2 होंदा है तो उहदे D का स्क्वायर बन जाता है। ओके तो ये पैरीमीटर किहदे इक्वल आऊगा 4 इंटू A। ओके दैन नैक्सट फिगर है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर दे विच जिहड़ा एरिया हुंदा है वो बेसिकली किहदे इक्वल हुंदा है हाफ इंटू लेंथ ऑफ 1 डायगनल इंटू जिहड़े आपां वो डायगनल दे उपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किते हैं उन्हां दा सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इहदे उपर क्वेश्चंस भी आते हैं तो बहुत ईजीली ये फॉर्मूले दे नाल सॉल्व हो जाते हैं। ओके सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू H1 + H2 वेयर H1 H2 की है परपेंडिकुलर्स जो कि आप ड्रॉ किए हुए हैं उस डायगनल पे। ओके दैन पैरीमीटर की आऊगा पैरीमीटर जिहड़ियां चारों साइड्स हैं बाहर वालियां उन्हां दा सम। ओके दैन नैक्सट है पैरेललोग्राम।
ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ A ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ A ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ B ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੀ ਵੀ B ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ, ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ A ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ H, ਠੀਕ ਹੈ, H ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਵਾਰ A ਹੈ ਤੇ 2 ਵਾਰ B ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ 2A + B। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਹੈ ਟ੍ਰੇਪੀਜ਼ੀਅਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵੀ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਰ ਸਾਈਡਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਟ੍ਰੇਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਰਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ AB ਤੇ CD ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ AD ਹੈ ਤੇ BC ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਟ੍ਰੇਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਰ ਸਾਈਡਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ। ਓਕੇ, ਤੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਦਿਓ, AB BC CD + DA। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਫੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਫੀਅਰਸ ਕੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਬਿਗਰ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਈਚ ਸਮੋਲਰ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸਫੀਅਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਫੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।